पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हैं। पश्चिमी देशों की यात्रा के बाद पूर्वी एशियाई देशों की आगामी यात्रा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती प्रदान करेगी। साझा ऐतिहासिक संबंध, संस्कृति और ज्ञान दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारतीय बातचीत और संपर्क का आधार रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और दूसरे इंडो पैसिफिक देशों के साथ मजबूत व्यापार और व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्यों को पूरा करना और देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के अवसर पैदा करना है। Prime Minister is undertaking a visit to Brunei and to Singapore. He is traveling to Brunei at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, and the visit is scheduled for 3rd and 4th of September, and after that he will travel to Singapore at the invitation of His Excellency Mr. Lawrence Wong, the Prime Minister of Singapore, and that visit will be over 4th and 5th of September. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा के लिए दारुस्सलाम की यात्रा करेगा। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। Let us take up the Brunei leg first. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei, and it coincides with the 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between our two countries this year. Some of you may recall that His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग शामिल हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न समझौतों पर करार की भी उम्मीद है। साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. As you know, we share a very warm and friendly relationship with Brunei, and our engagements cover multiple areas such as defense, trade and investment, energy, space technology, health, capacity building, culture and vibrant people-to-people exchanges. The Indian diaspora in Brunei is about 14,000, and they comprise a substantial number of doctors and teachers in Brunei who have earned goodwill and respect for their contributions to Brunei economy and society. प्रधानमंत्री की यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। We have received valuable support from Brunei in our space program. We have 3 MOUs with Brunei in this area. We have established a telemetry tracking and command station in Brunei in 2000, and this tracks and monitors all our eastward launches of satellites and satellite launch vehicles. Defense is another important pillar in our bilateral cooperation. We have an MOU on defense which was signed in 2016 and has since been renewed in 2021. It provides a framework for our collaboration that covers regular exchanges at high levels, naval and coast guard ship exchange visits, training and joint exercises, and participation in each other's exhibitions. We are also working towards establishing a joint working group for cooperation in the area of defense. ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये देश
अपनी समृद्धि और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। भारत और ब्रुनेई के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन संबंधों को और भी गहरा करने के अवसर प्रदान करेगी। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भागीदार है। Brunei is an important partner for India's Act East policy and our vision for the Indo-Pacific. And as we mark a decade of our Act East policy this year, the visit assumes additional significance. Brunei has been our country coordinator in ASEAN from 2012 to 2015 and played a key role in our further engagements with ASEAN and continues to do so today. इस यात्रा से रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान समेत सभी मौजूदा क्षेत्रों में ब्रुनेई के साथ सहयोग और मजबूत होगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान पहली बार नवंबर 2014 में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। वे मनीला में आयोजित 2017 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक बार फिर मिले। जनवरी 2018 में ब्रुनेई के सुल्तान 10 आसियान राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के साथ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए। वो 26 जनवरी 2018 को भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहे। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसे 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। वर्तमान में ब्रुनेई दारुसलाम में करीब 4.5 लाख की कुल आबादी में से करीब 14,500 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें से आधे से अधिक भारतीय प्रवासी अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक हैं, जो तेल और गैस उद्योग, निर्माण, खुदरा व्यापार आदि में काम करते हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंध 10 मई 1984 को स्थापित हुए थे। ब्रुनेई में भारतीय मिशन की स्थापना 18 मई 1993 को हुई थी। इससे पहले कुआलालंपुर स्थित भारतीय मिशन को ब्रुनेई के लिए समवर्ती रूप से मान्यता प्राप्त थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। करीब 6 साल बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर आ रहे हैं। वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होंगे। Prime Minister is visiting Singapore after nearly 6 years. In fact, his last visit to Singapore was in his first term as Prime Minister, and an early visit during his third term is something that is particularly welcomed by the Singaporean side. And also this is at the time when a new leader in Singapore, in His Excellency Prime Minister Lawrence Wong, has just taken over, and this is an opportune time to set the stage for the next stage of our vibrant bilateral relationship. The visit will also take place in the light of our 60th anniversary of diplomatic relations, which we are celebrating in 2025, and the 10th year of our strategic partnership with Singapore. व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। From the point of trade and investment also, the Prime Minister's visit to Singapore is very significant. Singapore is India's largest partner
trade partner in ASEAN, and it is a leading source of foreign direct investment. Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide and the largest source of FDI during the last financial year. Investments have also been very large. Since 2000 till now, we have had cumulative FDI of about $160 billion US. There will be an interaction with business leaders during Prime Minister's visit, and this will be an important element of the visit as the CEOs will be listening to India's growth story firsthand from the Prime Minister and the opportunities that it presents for them. हाल ही में सिंगापुर में द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। During the recently concluded India-Singapore Ministerial Roundtable, which is a very unique forum between ministers on both sides in diverse areas, a number of new forward-looking futuristic cooperation areas were identified in digitalization, sustainability, skills, health, advanced manufacturing and connectivity. And we are likely to exchange a number of MOUs in these areas during the forthcoming visit of the Prime Minister. भारत और सिंगापुर के प्रयासों और रणनीतिक योजना ने उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मोड़ पर ला दिया है, जिससे संसाधन संपन्न और संसाधन निर्भर देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में तेजी आई है। भारत और सिंगापुर के बीच संबंध पुराने और जीवंत बने हुए हैं। इनके बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास साझा मूल्यों, आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्दों पर परस्पर हितों पर आधारित है। Our ties have evolved, and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. आर्थिक और तकनीकी संबंधों, सांस्कृतिक, लोगों से लोगों के बीच संबंधों से लेकर कौशल विकास और डिजिटलीकरण तक बड़े पैमाने पर संबंध बहुत जीवंत और व्यापक रहे हैं। भारत सिंगापुर संबंध द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में एक नई ट्रेजेक्टरी देखेंगे। आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार सिंगापुर FDI का भी प्रमुख स्रोत है। सिंगापुर भारत को भू राजनीतिक रूप से और विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में देखता है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें सेवा संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने आपसी विश्वास और समझ, साझा हितों और लोकतंत्र और कानून प्रशासन के साझा मूल्यों के आधार पर रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति और दिशा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की। उसी साल 14-15 नवंबर को आसियान भारत RCEP और 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो दूसरी बार सिंगापुर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून 2018 को सालाना शांग्री-ला डायलॉग में मुख्य भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली सिन लुंग 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए और 2018 आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर अभी भी भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। पिछले 2 दशकों से सिंगापुर भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में
महत्वपूर्ण स्थान रखता आ रहा है।